हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैप्टर, यानी यहाँ पर जो है साइंस और प्रौद्योगिकी जो हमारा क्लास 10वीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन यानी आनुवंशिकता और विकास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चनों को उठाएंगे जो एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, और उन क्वेश्चनों को जो है एनालाइज करेंगे, समझेंगे और हर बात को जो है क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे। इसमें हर बात की जाएगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, और कुछ क्वेश्चनों का जो यहाँ महत्व रहेगा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। टुडे वी डिस्कस ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हियर, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। That is a class 10 CBSE NCERT Science and Technology book here. That's an important chapter. But here question arrive here. What is a DNA and function? What is a DNA? And write the function. That's an important question here. DNA and function. First of all here. And first of all, you understand what is the full form of DNA. You know that the full form of DNA here, deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid is a polymer composed of two polynucleotide chain that coil around each other to form a double helix. The polymer carries the genetic instructions for the development and functioning, growth and reproduction of all now organism and many virus. DNA is a ribonucleic acid or nucleic acid also here. You know that. I repeat again, the DNA here, or DNA is full form here, deoxyribonucleic acid is a polymer composed of two polynucleotide chain that coil around each other, and also here a double helix. And here important point here, the polymer carried genetic instruction for the development, functioning, growth and reproduction of all the organism and many virus. That's important here. And also important here, show this picture here. You know that in this picture there is a helical structure of DNA here. The clear, they are joined to each other. There is a most important here, a four part here. There is a four part here. There is a adenine, thymine, and guanine and cytosine. Mean A attached to here T and G attached to the C. That's important here. There is important. First of all, see to the upper side here. You know that here a pink color, there is a represent adenine and attached by here thymines. That's important. And other part is here, second number, they're attached by the guanine and they're attached by the cytosine. That's important point here. There is attached by the AT and GC. Note that is important helical structure for the exam view here, and that's important picture here. And here nucleic acid, the organic component known as the nucleic acid,
and can be found in the form of DNA or RNA in all living things. That's important here. There is a DNA and RNA in all living things present here. And this nitrogenesis basis, you know that this is a nitrogenesis basis. Sugar molecules and phosphate group are joined by the various bond in a series of sequence to generate this nucleic acid. The DNA structure define the basic genetical makeup of our body. That's important here. The DNA structure define the basic genetical makeup of our body. And DNA is responsible for the carrying and transmitting to the heredity material or genetic instruction from parent to offspring. That's the most important here. In addition to be ensuring that all living things pass on their genetic information. That's an important function here. In addition to ensuring that all living things pass on their genetic information, and DNA is essential for the synthesis of protein. The DNA here, a synthesis of protein. A nuclear DNA is the DNA that is found in the nucleus of each eukaryotic organism cells here. That's important point here. The majority of organisms' genomes are coded for by it, with the remaining genomes began to be handled by the plastocyte and mitochondria DNA. And the mitochondria DNA refer to the DNA that is found in the cell's mitochondria. And also here, similar to this, plastocyte contain their own DNA and the crucial for the photosynthesis. That's important function here. Know that important function on your screen. यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, आनुवांशिकता और विकास, क्लास 10वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। और हमारे समक्ष जो क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि डीएनए क्या है और इसके कार्य क्या हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे देखा जाए तो सभी क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट रखता है ये, क्योंकि यहाँ पर डीएनए और इसके कार्य प्रणाली के बारे में हमने विस्तारपूर्वक चर्चा करना है और समझना है हर एक बात को, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं अगर डीएनए के सबसे पहले हम फुल फॉर्म की बात करें, इसके पूरा नाम की बात करें तो इसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना एक बहुलक है जो एक डबल हेलिकल बनाने के लिए एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होती हैं। कुंडलित का मतलब होता है दोस्तों कि एक कोयल बना के रहते हैं ये। और पॉलीमर्स सभी जात जीवों और कई वायरस के विकास, कामकाज, वृद्धि और प्रजनन के लिए आनुवांशिक निर्देश देता है। देखा जाए तो डीएनए एक अपना महत्वपूर्ण योगदान यहाँ देता है और डीएनए का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। कहते हैं ये पॉलीमर सभी जीवों में, इवन कि वायरस तक भी, विकास के, कामकाज और वृद्धि प्रजनन के लिए आनुवांशिक निर्देश देता है। डीएनए के कारण ही सब निर्देश जो है हासिल होता है। डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंसानों का जो संरचना तैयार होती है वो कहीं ना कहीं डीएनए का एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। और ये कहते हैं जीवों में और कई तरह के वायरस के विकास में, उनके कार्य प्रणाली में, उनकी वृद्धि में, प्रजनन में जो सारे कार्य जो करते हैं वो सारे के सारे जो है डीएनए उनको निर्देशित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अब चलिए देखते हैं कि डीएनए के जो हेलिकल स्ट्रक्चर जो होती है, डबल कुंडलित स्ट्रक्चर होती है और ये चारों ओर कुंडलित होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। हम डायग्राम देखेंगे तो हमें और बात जो है समझ में आएगा। यहाँ पर आपके समक्ष जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पिक्चर दिख रहा है, ये डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हो कि डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से कभी नहीं जो है मिलते हैं आपस में, इनमें दूरियां हमेशा बनी रहती है। जब हम इसको लिखते हैं या बनाते हैं तब हमें लगता है कि ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे सांप
एक दूसरे के जुड़े होते हैं वैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बीच जो है 4 तरह के फैक्टर काम कर रहे होते हैं। एक होते हैं एडेनाइन, दूसरा होते हैं थायमोमाइन, तीसरा होते हैं ग्लूकोनाइज एंड साइटोसाइन। ये आपस में दोनों को जो है दूरियां बना के रखते हैं और सारे सूचक जो होते हैं इसी के अंदर विद्यमान होते हैं। यानी इसको ए के साथ टी के ज्वाइंट होता है और जी के साथ सी का जो है ज्वाइनिंग होती है। जैसे आप देख भी रहे होगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है पिंक, ग्रीन, येलो, रेड ऐसे आपको दिख रहे होंगी। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि एडेनाइन जो होता है अटैच जो कि आपको पिंक कलर दिख रहा होगा वो एडेनाइन है, और जो ग्रीन कलर दिख रहा है वो थायमोमाइन है। यानी इसको हम ए और टी कह सकते हैं। ए जो है टी के साथ ज्वाइन करता है, और इवन देखा जाए जो आपको रेड येलो दिख रहा है तो यहाँ पर रेड जो होगा वो 9 होगा, और दूसरा जो होगा आपको ब्लू दिख रहा है वो साइटोसाइन होगा। तो ये आपस में जो ज्वाइंट रखते हैं और कई तरह की इन्फॉर्मेशन इनमें विद्यमान रहती है जो आगे जो है दूसरे डीएनए में ट्रांसफ़र करती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर डीएनए स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रही है एग्ज़ाम भी उससे भी महत्वपूर्ण है और समझने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके समक्ष यहाँ प्रस्तुत हुआ है। अब देखिए, जब हम यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर देख लिए हैं डीएनए के, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। अब हम इसके डीएनए के कार्य के बारे में देखें तो ये कितना महत्वपूर्ण जो है मानव शरीर के साथ जो वायरस होते हैं उनमें भी कितने महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। कहते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड के रूप में जाने जाने वाले कार्बनिक घटक सभी जीव और चीज़ों में डीएनए या आरएनए के रूप में पाए जाते हैं। कहते हैं कोई भी जीव हो, कोई भी घटक हो, उसमें जो है डीएनए या आरएनए किसी न किसी रूप में विद्यमान अवश्य होते हैं, और इनका कार्य प्रणाली देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि ये नाइट्रोजेनस आधार यानी चीनी अणु और फास्फोरस समूह इन जो है न्यूक्लिक एसिड को उत्पन्न करने के लिए अनुक्रमों का एक श्रृंखला में विभिन्न बंडलों से जुड़े हुए होते हैं। जो हमने अभी बंडल देखा, जो 2 हेलिकल स्ट्रक्चर देखी गई थी, वो एक तरह से बंडल से जुड़े हुए होते हैं। और डीएनए संरचना हमारे शरीर के मूल आनुवंशिक संरचना को प्रभावित करती हैं। कहते हैं डीएनए के अंतर्गत ही हमारे शरीर का जो है निर्माण हुआ है। हमारे अंदर जो डीएनए आया है वो माता पिता के अंतर्गत आया है, और ये डीएनए संरचना हमारे शरीर के मूल आनुवंशिक संरचना को ही प्रभावित कर रहे होते हैं। डीएनए जो होता है माता पिता से संतान तक वंशगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देश को ले जाने और प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होता है। डीएनए का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। आपको लगता होगा कि डीएनए बहुत साधारण है, लेकिन हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं डीएनए का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और आप ये सोचते होंगे कि सारे गुण आपको माता पिता वाला ही मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। कहते हैं डीएनए जो होती है हमारा वंशगत सामग्री को जो है आनुवंशिकता को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाती है। आपके अंदर गुण जो होगा यहाँ पर नाना नानी और दादा दादी के भी आ सकती हैं, या उनके आगे जुड़े हुए जो है पेरेंट्स के भी आ सकती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको माता पिता का ही गुण मिले, आपको दादा परदादा नाना कहते हैं अलग जनरेशन तक के भी आ सकती हैं। तो ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन को जो है अगले जीवों तक पहुंचाने का कार्य, सारे के सारे कार्य जो होता है डीएनए के द्वारा ही होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि माता पिता से संतानों तक वंशगत सामग्री या आनुवंशिक निर्देश को ले जाने और प्रसारित करने का जिम्मेदारी जो होती है केवल डीएनए का ही होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी जीव चीज़ें अपनी आनुवंशिक जानकारी प्रसारित करती है, डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। यानी डीएनए जो हमारा बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह सुनिश्चित करने के अलावा कि सभी जीव और चीज़ें अपनी आनुवंशिक जानकारी प्रसारित करती है, सारे के सारे बातें जो होता है डीएनए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। देखा जाए तो परमाणु डीएनए वह डीएनए है जो प्रत्येक यूकेरियोटिक्स जीवों की कोशिकाओं के केंद्र में पाया जाता है। यानी यूकेरियोटिक जितने भी होते हैं बहुकोशिकीय जीव, उनके कोशिका के केंद्र में ये पाए जाते हैं, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीवों के अधिकांश जीनोम को इसके द्वारा कोडित किया जाता है। जितने भी जीव होते हैं उनके जीनोम को जो है डीएनए के द्वारा जो है कोडित किया जाता है, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और सेल जीनोम को प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सेल जितने भी जीनोम बचते हैं उसको प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा इनको नियंत्रित किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उस डीएनए को संदर्भित करता है जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए उस डीएनए को संदर्भित करता है जो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। अब ये सोच रहे होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कहते किसको है, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपने 9th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं। यहाँ पर सारे जो होते हैं एनर्जी एकत्र होते हैं जिसके एटीपी के रूप में भी हम दर्शा सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ह्यूमन बींग्स के जितने भी जीव होते हैं उन सभी में। तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को संदर्भित करता है, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसके सामान्य जो है प्लास्टिड्स में अपना स्वयं का डीएनए होता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण भी होते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई गई है इसके फंक्शन के अंतर्गत, कार्य के अंतर्गत। बहुत से मैंने आपको यहाँ पर कार्य प्रणाली बताई है। जो भी आपको 4-5 अच्छे लगते हैं जो आपके एग्जाम व्यू के लिए महत्वपूर्ण होते हैं उसको नोट कीजिए, समझिए और आगे दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में आप त्रिपाण सेंटर से मदद कीजिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं दोस्तों जितना आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा उतना ही काफ़ी महत्वपूर्ण दूसरे बच्चों के लिए बनेगा। मैं त्रिपाण स्टडी सेंटर जितना हो सकता है आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। कहते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी है मेरे पास, इसलिए मैं जो आपको जो है जितना हो सकता है कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए और आप लिख सको। क्योंकि वहाँ एग्ज़ाम में जो है आप जो रिप्रेजेंट कर दोगे, पेपरों में लिख दोगे, वही मान्यता होगी। बाकी आपका ज्ञान का कोई वहाँ पर महत्व नहीं रहेगा। जो लिखिएगा वही आपका ज्ञान है और यहाँ से जो नोट कीजिएगा वही आपकी कॉपी पर रहेगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण तो सब बातें होती है। जैसे अगर वीडियो देखते हो तो पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए, स्किप करके मत देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा, दूसरे बच्चे से ज्वाइंट होंगे, दूसरे बच्चे को समझ में आएगा, दूसरे बच्चे भी इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे तो आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर हर क्लास में मिलता ही रहेगा। हर जगह त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके समक्ष खड़ा रहेगा और ये सब तब होगा जब त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा और ये बढ़ाने का काम सिर्फ आपका है। जितना हो सके शेयर कीजिए, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो और भी वीडियो आपको मिलता रहे समय समय पर, तो जनरल सी बात है दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको जो है 8 से लेकर MA तक बच्चों की सारी वीडियो उपलब्ध है। तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है और आपके बड़े भाइयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इवन छोटे बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपाण चैनल को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।